Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing some contemporary South Asia, and under this chapter, we were discussing about Bangladesh in the previous class. We have seen that the people of East Pakistan to had to struggle, had to fight against the dominance of the Western Pakistan leaders, and it got its independence from Pakistan on 16 December 1971. On the map of the world, a new country emerged on 16 December 1971, that is Bangladesh. And we have also started our discussion regarding what happened in Bangladesh after 1971, after 16 December 1971. Constitution was framed, and this constitution was based on the principle of secularism, socialism and democracy, and accordingly elections were held, and so Sheikh Mujibur Rahman becomes the Prime Minister of the country, as his party Awami League wins the majority of the seats in the parliament. But very soon we see that some changes were made, some amendments were made in the constitution of Bangladesh, the parliamentary system which was prevailing in Bangladesh, that was changed. This parliamentary system was changed to presidential system, as it was done in the year 1975, and it was done by none other than the leader Sheikh Mujibur Rahman. So he amended the constitution according to his own desire, and it was all the amendments were against democracy, because first of all we see that the parliamentary system changed into presidential system, and as we know, the parliamentary system is based on the principle of accountability and responsibility, but this accountability and responsibility is lacking, is not there in the presidential system. There is very much possibility of the president become the dictator, because all the power is concentrated at one place, that is president. So there is very much possible that the president may become dictator in such a type of system, because accountability is not there like parliamentary system. So first change, this was the first change which was done by Sheikh Mujibur Rahman, and then he also changed the multi-party system of Bangladesh into single party system. What he did, that he abolished all parties except his own party, that is Awami League, and in this way we see that it was an end of democracy. But the other developments also took place in Bangladesh, and what we find that a very dramatic and tragic development happened, and this Sheikh Mujibur Rahman was assassinated in August 1975. Sheikh Mujibur Rahman was assassinated in August 1975. And this assassination was the consequence of a military uprising in the country.
the military started to become powerful, and it was the uprising of the military which led to the assassination of Sheikh Mujibur Rahman. And after that we see that a new military ruler whose name was Ziaur Rahman, he becomes he grabs the power, and what he does that he forms his own political party that is called Bangladesh National Party, BNP. So this man Ziaur Rahman he was a military ruler, but he gave it a covering of democracy, and he formed his party BNP, Bangladesh National Party. And then what happened that elections were held, and in this election the Bangladesh National Party of Ziaur Rahman won the election. ये इलेक्शन हुआ था 1979 में. तो as I told you, in case of Pakistan also, this is the trend कि जो भी मिलिट्री रूलर होते हैं पहले वो पावर को ग्रैब करते हैं, एंड देन वो क्या करते हैं कि उस पावर को जो उन्होंने गलत तरीके से ग्रैब किया, बिकॉज ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, they have grabbed the power, they have usurped the power. Now what they want to show the people and the world that they have the consent of the people, and for that purpose what they do, they conduct election. तो अपने मिलिट्री रूल को एक डेमोक्रेटिक कवरिंग देने के लिए इस तरह का हर कंट्री में मोस्टली ये होता है कि जब भी कोई मिलिट्री रूलर आता है तो वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो मिलिट्री स्ट्रेंथ के दम पे रूल नहीं कर रहा है. ही इज नॉट रूलिंग because of his military strength, but he is ruling because the people has given him the mandate, and for that purpose election is conducted. और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो जियाउर रहमान है उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना दी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और उसके बाद इलेक्शन होता है. और ऐसे इलेक्शन कभी भी जब भी मिलिट्री रूल के अंदर इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर बिल्कुल भी नहीं होता है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स उसमें नहीं होते हैं. इसमें कोई मतलब जिसको कहा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट वाली कोई बात ही नहीं है. इट्स अ नोन फैक्ट, एवरीवन नोज कि जहाँ भी मिलिट्री रूल के अंदर इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता है. तो इसी तरह के इलेक्शन में क्या होगा, जो भी मिलिट्री रूलर है वो जीतेगा ही जीतेगा. तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ. जियाउर रहमान जो था वो 1979 के इलेक्शन में जीत जाता है और यहाँ का रूलर बन जाता है बांग्लादेश का, लेकिन फिर से वो उसका भी असैसिनेशन हो जाता है. जियाउर रहमान ही वाज आल्सो assassinated, and then another military ruler take over the country, and this military ruler was Lieutenant General H.M. Irsad. Lieutenant General H.M. Irsad. Okay, so what you find, फर्स्ट ऑफ ऑल शेख मुजीबुर रहमान जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था वो फॉर्म करते हैं. देन कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है, और एक तरफ लोग उनके अगेंस्ट होने लगते हैं, और दूसरी तरफ मिलिट्री अपराइजिंग होता है जिसमें उनका असैसिनेशन हो जाता है. एंड देन जियाउर रहमान बिकम्स द रूलर, and he forms his political party BNP, and then elections were held in the year 1979 in which he wins the election, and again he was assassinated, and now another military ruler, Lieutenant General H.M. Irsad, takes over the power in Bangladesh.
But now what we find that the people of Bangladesh, they started their demand for democracy. जो कुछ भी ये developments हुए, these are highly undesirable developments, and now the people stood against all these military rule, undemocratic rule, and they started demanding democratic government. And in this protest, students were very much involved. They were very much active. They were in the forefront in their demand for the democratic rule. And what happened that the demand of the people was so high, the pressure was so high that the military ruler H.M. Irshad, he was forced to allow political activity on a limited scale. जो भी political activities पे जो democratic rights होते हैं, like right to freedom of expression, right to protest, इन सब पे पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई थी under the military rule. But now because pressure was very high, so Irshad has to accept political activity. And then what we find that फिर से इलेक्शन होता है, और इसी समय में इलेक्शन जब होता है तो ही वॉज अगेन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years. लेकिन जो प्रोटेस्ट था लोगों का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इरशाद के अगेंस्ट, और उनको बीच में ही अपने 5 years उन्होंने कंप्लीट भी नहीं किया था, उसके पहले ही 1990 में उनको अपनी पोस्ट को छोड़ देना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है, और लोगों के जो डिमांड थी उसके आगे उनको झुकना पड़ जाता है. तो ये सारे जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं जनरल इरशाद के बनने के बाद, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों की डिमांड्स आ रही है, स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है डेमोक्रेसी के लिए, कुछ हद तक पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउ भी कर दिया गया, इलेक्शंस उसी दौरान हो जाते हैं, इलेक्शन में इरशाद जीत भी जाते हैं, लेकिन बीच में ही इरशाद को ड्रॉप करना पड़ जाता है, स्टेप डाउन करना पड़ जाता है. और इसके ये जो जब इन्होंने स्टेप डाउन किया तो वो जो टाइम था दैट वाज 1990. और अगर इस 1990 को आप रिलेट करें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ, तो ये वो समय था जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ चुका था. एंड फाइनली इन द ईयर 1991 it was disintegrated. USSR was completely disintegrated, and Cold War also come to an end, है ना. ये सारे हम देख चुके हैं. तो इन सब का इम्पैक्ट जो है वो साउथ एशिया पे देखने को मिलता है, क्योंकि 91 के बाद बांग्लादेश में कभी भी मिलिट्री रूल नहीं आया. 91 के बाद से बांग्लादेश की अगर पॉलिटिक्स को हम देखें तो उसमें दो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है. एक अवामी लीग 1991 के बाद का जो समय है, पोस्ट 1991, एक है अवामी लीग जिसको कि शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया था. शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी जिसके लीडरशिप में बांग्लादेश को आज़ादी मिली पाकिस्तान से, ठीक है. और दूसरी जो पार्टी वहां की सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी है वो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी, जिसके बारे में हमने अभी देखा. इस पार्टी को बनाने वाले कौन थे? शेख जियाउर रहमान, है ना. तो ये अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जियाउर रहमान ने बनाया. यही दो पार्टीज जो हैं आज के समय में 91 के बाद से लेकर के अभी तक में, ये दो पार्टीज ही सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में. सो द लीडर ऑफ अवामी लीग इज शेख हसीना. She is the daughter of Sheikh Mujibur Rahman, and at present she is the Prime Minister of Bangladesh. ठीक है.
तो आज के समय में अवामी लीग का ही रूल है। अवामी लीग की जो नेता है वो शेख हसीना है, ठीक है। और अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी को देखें तो इसके जो मेन लीडर हैं वो है खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया। शी इज द वाइफ ऑफ जियाउर रहमान। जियाउर रहमान जो कि जिन्होंने बनाया था बांग्लादेश नेशनल पार्टी को, उसकी उनकी ये वाइफ है बेगम खालिदा जिया। तो जो हम देखेंगे कि 91 के बाद से जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स है वो टोटली डेमोक्रेटिक है। कभी भी यहाँ पर मिलिट्री अपराइजिंग नहीं हुआ, मिलिट्री रूल कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ 91 के बाद से, और टोटली डेमोक्रेटिक वे में काम चल रहा है। इलेक्शंस हर 5 ईयर्स पे होते हैं। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर आती है कि जो बांग्लादेश में एक जिसको हम निगेटिव डेवलपमेंट कहेंगे, कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो रिज़ल्ट आते हैं उस रिज़ल्ट को जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। जो अपोजिशन होती है उसकी तरफ से ये काफ़ी एलिगेशन लगाए जाते हैं कि चुनावों में गलत तरीके, अनफेयर मीन्स यूज़ किया गया, जो काउंटिंग था वो गलत तरीके से हुआ। तो इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं जो कि कभी भी डेमोक्रेसी के लिए हम अच्छी बात नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में आप जो भी हारने वाली पार्टी है अगर वो अपने हार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उसका ये एलिगेशन है कि किसी तरह के अनफेयर मीन्स को यूज़ किया जा रहा है, गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ किया जा रहा है इलेक्शन में, तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है डेमोक्रेसी के लिए। तो लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, डेमोक्रेटिक वे में काम हो रहा है, और होपफुली आगे जो भी आपसी इस तरह की चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी, वो कम होंगी। तो ये हमारा बांग्लादेश का इंटरनल पॉलिटिक्स, इसको हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारे सामने एक नेक्स्ट कंट्री, इम्पॉर्टेंट कंट्री है साउथ एशिया का, वो है नेपाल। अब हम लोग नेपाल के बारे में देखेंगे। नेपाल, वी ऑल नो, ये हमारे नॉर्थ में हमारा एक नेबर है। और नेपाल के बारे में जो सबसे ख़ास चीज़ होती थी आज की डेट में, दैट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ नेपाल, बट जिस तरह से हम नेपाल को एक आइडेंटिटी मिली हुई थी एज द ओनली हिंदू स्टेट। नेपाल जो था एक हिंदू किंगडम था, एक रिलीजियस कंट्री हम कह सकते हैं। जैसे कि सेक्युलर कंट्री होती है जिनका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, जैसे कि हमारी कंट्री है, बट नेपाल एक हिंदू कंट्री था। बिफोर 2015 में वहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद से वो एक हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया है। लेकिन उसके पहले की अगर हम नेपाल की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक खासियत थी वो ये थी कि वो एक हिंदू स्टेट था, और साथ ही साथ नेपाल का राजा किंग, नेपाल में मोनार्की थी। नेपाल में जो डेमोक्रेसी आई वो डेमोक्रेसी थर्ड वेव में आई है 1990 में। 1990 के पहले की अगर कंडीशन हम नेपाल की देखें तो नेपाल वॉज मोनार्किकल सिस्टम, जहाँ पर कि जो मोनार्की थी वो ऑल पावरफुल थे। उनका जो कंट्रोल था वो पूरी की पूरी आर्मी पर कंट्रोल था, गवर्नमेंट पे कंट्रोल था, और लोगों को राइट्स भी उस हिसाब से नहीं मिले हुए थे जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। तो किंग वॉज ऑल पावरफुल टिल 1990। थर्ड वेव हम इसको कह रहे हैं। ये आपको क्लास 9th में जब डेमोक्रेसी की जो स्टार्टिंग चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है 3 वेव्स आए हैं डेमोक्रेसी का। तो ये फर्स्ट वेव तो वो हुआ जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में
जैसे 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका जैसे जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। सेकेंड वेव तब आया जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, उन सब में डेमोक्रेसी ज़्यादातर कंट्रीज़ में आती है। दैट वाज द सेकेंड वेव। एंड थर्ड वेव है ये 1990 में थर्ड वेव आता है। और इसी थर्ड वेव में हम देखते हैं कि नेपाल में डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट होती है। इसके पहले वहाँ पर किंग जो था वो ऑल पावरफुल था। किंग का कंट्रोल हर कुछ पे था, चाहे वो आर्मी हो चाहे गवर्नमेंट हो, और लोगों के पास राइट्स नहीं थे। लेकिन 1990 में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विल बी देयर, but the monarchy will act according to the rules of the constitution. Limited monarchy, it's not absolute, है ना? ये नहीं है कि monarchy के पास absolute power है, it can do anything, whatever the king says that becomes the law. It's not like that, है ना? जब हम constitutional monarchy की बात करें तो monarch is also under the constitution. Constitution is the supreme authority, ठीक है, और हर कोई उसके अंदर काम कर रहा है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी वो 1990 में इस्टेब्लिश होती है। और इसमें हम देखते हैं कि बहुत ही वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो थी वो चली थी। और उस प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारण ही किंग को ये इस बात के लिए तैयार होना पड़ा कि अपने पावर वो छोड़ेंगी। पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर को वो राजा अपने पावर देने के लिए तैयार हुआ, और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो की स्टार्टिंग वहाँ पर हो जाती है। नेपाल की पॉलिटिक्स में जहाँ एक तरफ हम मोनार्की देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ हम प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स देख रहे हैं, वहीं one more element was there in the politics of Nepal, and that was Maoist. माओइस्ट जो माओ से तुंग के आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं वो माओइस्ट कहलाते हैं। और माओइस्ट जो होते हैं उनका जो सीधा साधा जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि दे डू नॉट बिलीव इन द एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वो जो भी गवर्नमेंट है उसके वो अगेंस्ट होते हैं, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। तो यहाँ पर और दे बिलीव इन वायलेंस उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम कहेंगे कि हथियार होता है। दे बिलीव इन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट मोनार्क। तो यहाँ पर नेपाल में पूरी 90s जो है वो माओइस्ट जो थे वो बहुत ही उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया। पूरे नेपाल में माओइस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो हमको देखने के लिए मिलता है। और ये जो माओइस्ट हैं ये रूलिंग एलीट मोनार्की के अगेंस्ट थे और उनके अगेंस्ट वो वायलेंस यूज़ करते थे। और इसमें जो वॉरफेयर अपनाते थे दैट इज नोन एज गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर कहने का मतलब क्या होता है? जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है जब सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपको उसके अगेंस्ट लड़ना भी है, बट यू नो कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके पास जो पावर है वो हमारे पावर से ज़्यादा है, तो उस केस में ही गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ किया जाता है। छुप कर वार करना, सामने से नहीं कर पाना, क्योंकि सामने से करेंगे तो वो दे विल नॉट बी एबल टू डिफीट देयर एनिमी, जो वो इसलिए वो छुप कर करते हैं। इसी को हम लोग गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। तो पूरी 90s हम देखते हैं कि नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो चलता रहा। एक तरफ ये इनकी तरफ से गुरिल्ला वॉरफेयर माओइस्ट की तरफ से, और उधर से जो किंग की आर्मी थी वो इनको क्रश करने में लगी रही। और
एक तरह से ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था नेपाल में। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, 3 इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे पावर के, और इन तीनों के बीच लड़ाई थी। मोनार्की जो कि पावरफुल था, है ना, एक तरफ मोनार्की, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी के लिए प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हो रहे थे, और तीसरी तरफ माओइस्ट मोनार्की, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड माओइस्ट एक्टिविटी। तो ये ट्रायंगुलर जो है, ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट नेपाल में चल रहा था, ठीक है। और इन सब में हम क्या देखते हैं कि जो मोनार्क थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे, दूसरी तरफ माओइस्ट एक्टिविस्ट को भी वो सप्रेस कर रहे थे। वो माओइस्ट जो थे वो उनके अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर अडॉप्ट किए हुए थे, ये इनकी आर्मी इसको क्रश कर रही थी। इधर लोगों का मूवमेंट चल रहा था कि दे वांटेड कंप्लीट डेमोक्रेसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर भी उनके पूरे डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिले हुए थे, ठीक है। ये सब कुछ चल रहा था। और इसमें क्या होता है कि जब तक नेपाल में किंग वीरेंद्र नेपाल के राजा थे, जब तक किंग वीरेंद्र नेपाल के राजा थे, तब तक एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन पीसफुली। किंग वीरेंद्र से किंग ज्ञानेंद्र जब नेपाल के किंग बनते हैं तो चीज़ें जो है वो उस तरह की नहीं रह जाती, बहुत सारी चेंजेस आने स्टार्ट होते, क्योंकि किंग ज्ञानेंद्र जो थे वो उनका ये सोचना था कि हम किंग हैं तो सारे पावर्स हमारे पास होना चाहिए। ही was very much against the concept of democracy, against the concept of constitutionalism. उनका ये था कि राजा हम हैं तो हमारे पास पूरे पावर्स होने चाहिए। और यही कारण था कि 2002 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है नेपाल के पॉलिटिक्स में, एंड दैट द किंग abolished the parliament and he dismissed the government, and in this way he ended democracy completely in Nepal। और फिर से नेपाल जो है वो 1990 के पहले वाले कंडीशन में चला गया, प्री 1990, है ना। 2002 में जो किंग ज्ञानेंद्र ने जो कुछ भी किया कि पार्लियामेंट को आपने अबॉलिश कर दिया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, पार्लियामेंट के पावर्स, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पावर सबको राजा ने यूसर्व कर लिया, सबके पावर को छीन के उसने अपने पास ले लिया। तो इट वाज अ बैकवर्ड मूवमेंट। नेपाल आगे नहीं गया, नेपाल पीछे आ गया। नेपाल 2002 में 1990 के पहले वाले कंडीशन में चला गया, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट नेपाल के अंदर होता है 2002 में। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि द पीपल ऑफ नेपाल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज डेवलपमेंट्स, वॉट एवर चेंजेस, वॉट एवर डन by the monarch, that was not given consent by the people wanted democracy, complete democracy. People wanted ki the parliament should be reinstalled, the powers of the government should be again given to it। तो इस कारण से जो लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और इसी के साथ लोगों ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। 2002 के बाद से ही लोगों का मूवमेंट जो है वो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और इसमें सारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर डेमोक्रेसी लिमिटेड में ही स्टार्ट तो हो ही चुका था, पॉलिटिकल पार्टीज आ चुके थे, इलेक्शंस हो रहा था, एक सही रास्ते पर नेपाल जा रहा था, जो कि वापस वो फिर से पीछे चला गया। तो अब जनता पीछे जाने के लिए तैयार नहीं थी, है ना। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे वो सब मिल गए, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल जाते हैं साथ में, और ये राजा के अगेंस्ट अपना
आंदोलन चलाते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, और इसको सपोर्ट यहाँ से भी मिलने लगता है। जो माओइस्ट थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग सपोर्ट टू दिस प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और ये जो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि किंग को लोगों के डिमांड के आगे झुकना पड़ता है। ये होता है अप्रैल 2006 में। So we will continue with this in the next class.